Very good evening to all of you. Can you all hear me? Okay. Thank you for confirming. Please confirm one more thing. Is my PowerPoint presentation visible? Okay, thank you. Thank you. So I can see many of you have joined the session. Today is our first class for the revision of International Business, Semester 4th, BCom program. Before starting the content, I would like to share with you the syllabus for international business. Just give me a second. I will share my screen with syllabus. Can you see the syllabus? Discipline specific core course 4.3 international business. Okay. Thank you. So this is our syllabus for semester 4 BCom. I don't know that any of your faculties have shared it with you or not before, but you can get it downloaded from the SOL website, which is sol.du.ac.in. Okay. And if you are unable to find it, you can take a screenshot from here also. So we will wait for like 1 minute more if others are also joining or not. Then we'll start our session. Okay. First of all, we'll discuss about the syllabus and then we'll start our class. Students, if you have any query, you can just write it in the chat box. As I know that you are not able to, unmute yourself, you are not allowed to unmute yourself. So you can just type it in the chat box. Okay, so let's start discussing the syllabus first. So this is your syllabus. You have 3 DSCs, right? In fourth semester, आपके पास 3 main paper हैं जिन्हें हम कहते हैं discipline specific core paper, right? तो उसमें से one you have is entrepreneurship, right? Second one is, I guess, cost accounting, and third one is international business. So international business में in total you have 5 units. Now, the classes provided to us for revising international business are 5. So we'll try to cover 1 unit per class. Okay, so today is our first class. So we'll try that we finish with the unit 1. Okay,
The revision for unit 1 is done today only. Just make sure that you carry your, you keep your notebooks and pens with you. And please note and tick, or you can keep your SLM with you and just side by side tick what all is said or told to you that is important. Okay. Okay, can you confirm me one thing? Am I visible to you all? Okay, so you all can see me. Okay, okay, great. So in the first unit, we have globalization, we have some introduction to international business. There is complexities or challenges of international business, the concept of internationalization, okay, and modes of entry into the international businesses. So this is our first unit. Those students who don't have the syllabus, you can just take a screenshot of the screen. You can see all the 5 units are displayed here. You can just take a screenshot, and when you are studying, you can study according to the syllabus. Okay. So there might be any other book that you are referring to that might have more topics that are not in your syllabus. So you can just stick to your syllabus and study accordingly. Right. So that is why I'm sharing the syllabus with you. Okay. So now I hope you might have taken the screenshot. So we'll start with unit 1 today, which is Introduction to International Business. Okay. So let me once again share my presentation with you all. Is this presentation visible to you all? Clearly visible? Okay. Okay. So welcome students to the first class of Revision for International Business Semester 4. Under International Business, I hope you might have taken the PCP classes also. But those who have not taken this PCP classes, so they can get a lot of benefit from these classes also. Okay. So I would request you to keep your SLM with you and we'll move topic by topic. Now, what is international business? जब हम ये वर्ड सुनते हैं इंटरनेशनल बिजनेस, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि ये इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? इंटरनेशनल होने का मतलब क्या है कि आपकी जो एक कंट्री है जहां पर आप रिसाइड करते हैं, उससे बाहर जाकर कोई काम करना, बाहर जाना, ठीक है, कुछ अपना बिजनेस बाहर रन करना, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस. ओ, SLM इज स्टडी मटेरियल, सेल्फ लर्निंग मटेरियल. I'm sorry, I used the short form, but it's self-learning material. That is your study material. Yes, I'm asking you to keep it with you during the class. Okay. So international business क्या होता है बच्चों? International business होता है, एक तो आपके साथ इसमें वर्ड जुड़ा है international, एक वर्ड जुड़ा है इसके साथ business, right? So international का मतलब क्या है? अपनी कंट्री के बियॉन्ड जाना, ठीक है, कंट्री से बाहर जाना, राइट, और
बिजनेस करना, ठीक है। तो हमारे पास जो ये टर्म बना इंटरनेशनल बिजनेस, व्हाट इज दिस? इट रेफर्स टू व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ योर एग्जिस्टिंग कंट्री, ओके, टू परफॉर्म सम बिजनेस एक्टिविटी और operations related to business, right? So that is known as international business. Now, in today's class, what topics are we trying to cover are first of all, introduction to international business, then characteristics and its importance, then complexities in international business, the concept of globalization, significance and impact on international business of globalization, then modes of entry into international business, and internationalization, the concept of internationalization. Okay. One more topic we are going to study, that is the difference between domestic business and international business. ठीक है. Now, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक डेफिनेशन दिखेगी इंटरनेशनल बिजनेस की. इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस एंड एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स, services or resources between individuals, organizations or governments in different countries. It encompasses various activities including international trade, investment, finance, marketing and management. So if you are performing these activities, कौन कौन सी एक्टिविटीज है? आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बाहर जाकर, आप फाइनेंस कर रहे हो किसी को, आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो बाहर जाकर, या आप मैनेजमेंट का काम कर रहे हो किसी और फर्म के लिए, राइट? तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस. मेनली जब आपके सामने इंटरनेशनल बिजनेस एक कॉन्सेप्ट की तरह आता है तो आपकी माइंड में क्या आना चाहिए कि जब आप अपनी डोमेस्टिक बाउंड्रीज, यानी कि योर ओन कंट्रीज बाउंड्रीज को छोड़कर बाहर जाकर कोई बिजनेस अपना करना स्टार्ट करते हैं, सो दैट इज नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस. कोई भी आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बाहर जाकर करते हैं, अपना बिजनेस बाहर जाकर ओपन करते हैं, सो दैट इज नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस. ओके. नाउ, इंटरनेशनल बिजनेस की बेटा आपको लगता है कोई हमारे बेनिफिट्स होते होंगे इसके? क्या हमें इंटरनेशनल बिजनेस के कोई बेनिफिट्स होते हैं? यहाँ पर हम बेनिफिट्स को ना जो है दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, राइट? अगर मैं एक फर्म हूं, यानी कि मैं एक कंपनी हूं जो इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज्ड है, तो मेरे लिए क्या बेनिफिट्स होंगे? और अगर मैं अपने नेशन की बात करूं ओवरऑल, राइट, कि इंडिया को इंटरनेशनल बिजनेस करने के क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है? तो हम इसको दो तरीके से देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं. बिल्कुल, वेरी नाइस. एक बच्चा कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी को बिल्डअप करने में इंटरनेशनल बिजनेस हमारी हेल्प करता है. ठीक है, तो ये क्या है आपका? जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज होते हो तो आपके पास जो है फॉरेन कैपिटल काफी सारी आती है, राइट, जिससे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है पॉसिबल हो पाता है, राइट. सो दिस इज वन बेनिफिट. आइए देखते हैं कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं हमारे नेशन के लिए ओवरऑल, राइट. So it encourages a nation to obtain foreign exchange that can be utilized to import merchandise from global market. Okay? तो आपको जैसे मैंने भी बताया कि फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलती है जिससे कि हम इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे से स्टैंड हो पाते हैं, राइट, और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है और अच्छे तरीके से हो पाता है. देखो, जब आप डील करोगे एक नेशन के साथ जो कि आपकी कंट्री के अलावा जो है और वो बहुत अच्छा, उसका जो करेंसी है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, जब आप उसके साथ डील करते हो, वहां पे आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो, तो वहां वहां पे आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हो या वहां से इंपोर्ट करते हो, तो आपका उस कंट्री के साथ एक रिलेशन बनता है, राइट. जब आप कोई चीज बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो वो कंट्री आपको पे करेगी कुछ पैसे, राइट. एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब समझते हैं. व्हाट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट? एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपोर्ट
करने का मतलब होता है जब आपकी बनाई हुई गुड्स जो कि आपने अपनी कंट्री में बनाई है वो आप एक दूसरी कंट्री को जो है भेजते हो, सेल करते हो। ओके। और इंपोर्ट करने का मतलब क्या होता है कि जब आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप किसी दूसरे नेशन से मांगते हो और उसको पे करते हो कि आप ये जो अ, कोई भी चीज है, लाइक कार है कोई या फिर कोई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो आपको चाहिए, तो आप जो है दूसरी कंट्री को पे करते हो उस टेक्नोलॉजी को या कार को या प्रोडक्ट को रिसीव करने के लिए। दैट इज इम्पोर्ट। ओके। आई यानी आई से हमारा होगा इन, आ रहा है, ठीक है, इम्पोर्ट। और एक्सपोर्ट ई एक्स से स्टार्ट होता है, एग्जिट भी ई एक्स से स्टार्ट होता है। तो जब हम अपना कोई प्रोडक्ट बाहर भेज रहे हैं यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब यहाँ पे इट encourages a nation to obtain foreign exchange, right? if we are exporting some products बाहर तो हमारे पास foreign exchange में वहां की करेंसी आएगी। ओके। it prompts specialization of a country in the production of merchandise which creates in the best and affordable way। अब आप खुद सोचो कि कोई ऐसी चीज है जिसको आपको मैन्युफैक्चर करना है, बट अगर आप अपनी कंट्री में उसको मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको जो है डबल ट्रिपल पैसे जो है लगेंगे, मतलब, ठीक है, क्योंकि आपको पहले ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे लोगों को ये चीज सिखानी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीज बाहर ऑलरेडी जो है आपको अवेलेबल है, तो हो सकता है कि आपका जो नेशन है उसको सस्ते में बाहर से जो है इंपोर्ट कर ले, राइट। तो जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज होते हो तो आप जो है अपना बेनिफिट और लॉस यानी गेन और लॉस को अच्छे से समझ पाते हो कि कौन सी चीज मुझे जो है इन हाउस मैन्युफैक्चर करनी चाहिए और कौन सी चीज को जो है मुझे बाहर से इंपोर्ट कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे वो सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो व्हेन यू स्टडी इंटरनेशनल बिजनेस आप अपना प्रॉफिट लॉस जो है इजीली समझ पाते हो, आप देख पाते हो कि आपको ज्यादा बेनिफिट कहाँ से जो है पॉसिबल है। अब क्योंकि हमारा इंटरनेशनल बिजनेस में हम एंगेज्ड है तो हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ हम जो है ए कंट्री से कुछ नहीं ले सकते, बी कंट्री से कुछ नहीं ले सकते, सी से नहीं ले सकते। क्योंकि हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज्ड हैं तो हम फ्री हैं, जहां से हमें सस्ता मिलेगा, जहां से हमें बेनिफिट लगेगा, वहां से हम उस चीज को जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। Next one is it helps the country in enhancing its development prospects and furthermore make opportunity for employment। अब आप देखेंगे जब आपकी कंट्री में या आप देखते ही हैं कि यहाँ पर कितनी सारी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ओपन हुई हैं, राइट। अब वो क्या कर रही हैं, वो हम सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं। ओके। तो हमारी नेशन के लिए जो है ये एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट जो है बढ़ रहा है। ओके। अगर हमारी कंट्री इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज ही नहीं होती और हमारी कंट्री में जो है इंटरनेशनल बिजनेस करना अलाउड ही नहीं होता, आप अपनी बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाके बिजनेस नहीं कर पाते, तो आपको ये सारी की सारी जो भी क्या कहेंगे उसको, ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है नहीं मिल पाती। ओके। सो व्हेन वी आर एंगेज्ड इन इंटरनेशनल बिजनेस सबसे पहले हमें अच्छा फॉरेन एक्सचेंज जो है मिलता है, राइट। हम करेंसी अपनी क्या बोलते हैं अच्छे से अब दूसरी कंट्री के साथ जब हम एक्सचेंज करते हैं तो हमें अब जो उनकी करेंसी है उसका फायदा मिलता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा से ज्यादा होते हैं। थर्डली हम अपना बेनिफिट को जज कर पाते हैं कि कौन सी कंट्री से हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना जो है बेनिफिशियल है या खुद इन हाउस डेवलप करना बेनिफिशियल है, इसको हम जज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है विच रिलेट्स टू benefits with respect to the nation. Okay. Last one is international business makes it comfortable for individuals to utilize commodities and services produced in other nations which help in improving the standard of living। तो अब आप देखेंगे कि आजकल का जो सिनेरियो है उसमें कोई चीज अगर यूएस में मैन्युफैक्चर हो रही है, यूएस में बन रही है, और कोई चीज अगर इंडिया में बन रही है तो इंडियन जो हमारा कस्टमर है उसके पास स्कोप है
कि हाँ वो बाहर से उस चीज को जो है मंगवा सकता है। और अगर बाहर के किसी कस्टमर को हमारे कंट्री का कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई उसको जो है चीज यहाँ पे पसंद आ रही है, तो वो यहाँ से उस चीज को जो है ऑर्डर कर सकता है। सो इससे क्या होता है, पहले क्या होता था, अब हमारी थोड़ा पहले के मोड में जाते हैं। तो तब क्या होता था 1991 से पहले, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो है ट्रेंड नहीं आया था, उस टाइम पे हमारी कंट्री की बाउंड्रीज क्या थी, क्लोज थी। मतलब कि हम बाहर वाले लोगों, बाहर वाली कंपनीज से कोई चीज नहीं मंगवा सकते थे। हमारे जो इन हाउस कंपनीज है, हमें वहीं से खरीदना पड़ रहा था। ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या था कि हमारे पास लिमिटेड चॉइसेस थी, और हमें कोई चीज अगर बाहर से मंगानी होती थी, तो उसके लिए अगर कोई बाहर जा रहा होता था तो हम उससे रिक्वेस्ट कर लेते थे, है ना। लेकिन अब क्या है, अब आपके पास इंटरनेट है, आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। तो आप क्या करते हो, आपको कोई चीज अगर दूसरी कंट्री में पसंद आती है तो यू ऑर्डर इट थ्रू इंटरनेट, राइट। सो इससे क्या हो रहा है, हमारी कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। पहले हम सिर्फ क्या करते थे, इन हाउस चीजें जो है यूज कर रहे हैं, और कोई चीज अगर हमें बहुत अच्छी जो लग रही है बाहर, बट हम उसको ले नहीं पा रहे हैं, हम मतलब उसको ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसकी बाउंड्रीज क्लोज्ड है। ठीक है। तो अब क्या है, अब हम बाहर से कोई भी चीज जो हमें पसंद आ रही है वो हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं, विच इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ आवर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, राइट। इसके बाद हम आते हैं बेनिफिट्स टू द फर्म्स। अब इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ बेनिफिट्स फर्म्स के लिए भी होते हैं। अभी हमने जो पढ़े वो एज अ नेशन, एज अ होल उनके लिए थे। अब कंपनीज के लिए इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज होना मतलब क्या बेनिफिट लेकर आता है, उसको देखते हैं। तो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स इन द नेशन वेयर कॉस्ट आर हाई। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर जो भी चीजें बन रही हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, आपकी ज्वेलरी हो गई विच इज ऑथेंटिक सिल्वर ज्वेलरी, और कॉपर या इस टाइप की कोई तांबे की ज्वेलरी, तो बाहर उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, राइट। उधर के लोगों को लगता है कि ये जो है यहाँ से जो हम चीजें बना रहे हैं, दे आर मोर ऑथेंटिक, दे आर मोर ब्यूटिफुल, एंड दे आर मोर ट्रेडिशनल, राइट। तो उनको यहाँ से ये सब चीजें जो है परचेज करना अच्छा लगता है, राइट। तो अब आप जब कोई चीज बाहर जाकर सेल करते हो, यानी कि आप जो उसको क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो। अगर आप अपनी चीज को बाहर जाके सेल कर रहे हो, बाहर भेज रहे हो फॉर द सेलिंग पर्पस, तो आप क्या कर रहे हो, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, बताओ। वेरी नाइस। तो हम क्या करें, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम ये ऑथेंटिक ज्वेलरी या फिर इस टाइप की कोई ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हम बाहर सेल कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास बाहर की करेंसी में पैसा जो है आता है, विच इज, आप मानोगे ना कि हाँ ये सब चीजें बाहर एक्सपेंसिव बिकेंगी, राइट। तो हमारे लिए ये फायदेमंद होता है एज अ फर्म। अगर मेरी फर्म इन सब चीजों में डील करती है और ये सब चीजें वो बाहर एक्सपोर्ट करती है, तो जो ये अर्न कर पाती है, ये किस वजह से कर पाती है, बिकॉज इट्स एंगेजमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस। अगर वो इन हाउस ही उसको बनाकर सेल करेगी, तो शायद वो इतना प्रॉफिट अर्न ना कर पाए जितना कि वो बाहर वाली कंट्रीज से, इंटरनेशनल क्लाइंट से अर्न कर सकती है। Okay. Next is it helps the organization in utilizing their surplus resources and increasing profitability of their activities. अब हो सकता है कि आपके पास जो है, आपकी कंट्री है, आपके पास बहुत सारा जो है ह्यूमन रिसोर्स है, जैसे कि इंडिया में बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स है, आप मानोगे बहुत सारी पॉपुलेशन है, राइट, और यंग पॉपुलेशन है। तो अब हमारी जो कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, वो जो है सबको नहीं मिल पा रही थी। ठीक है। तो अब रिसोर्स क्या है हमारा, ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ये हमारा रिसोर्स है एक तरीके से। ठीक है। इसको अब हम, जब हमारी कंट्री में दूसरी एमएनसीज आई, तो वो इस ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दे पा रही हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, उनको सैलरी दे रही हैं। ठीक है।
तो जब आपके पास सरप्लस, किसी चीज का सरप्लस रिसोर्स है, यानी आपके पास बहुत ज्यादा कोई चीज अवेलेबल है, तो उसको जो है आप या तो बाहर भेज दो, एक्सपोर्ट कर दो, है ना, या फिर जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन है, उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल पाई क्योंकि हमारी कंट्री में कुछ इंटरनेशनल कंपनीज ने अपनी कंपनीज खोली। ठीक है, तो आपका सरप्लस रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करने का एक मौका कौन देता है? इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, देन इट ऑल्सो हेल्प्स द फर्म्स इन एनहांसिंग देयर डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स। अब आप एक कंपनी देखें जो सिर्फ इंडिया में रन कर रही है, और एक ऐसी कंपनी देखें जहां पर ये कंपनी इंडिया में, श्रीलंका में, यूके में, ठीक है, कनाडा में, यहाँ पर इसकी ब्रांचेस है। तो आपको क्या लगेगा कि कौन सी कंपनी जो है आपके लिए ज्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेगी, आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है? सेकंड वाली, राइट, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस दूसरी कंट्रीज में भी हैं। तो इसमें क्या है कि जब आप अपनी जो फर्म है, जो कंपनी है, उसके ऑपरेशंस को इंटरनेशनली एक्सपैंड करते हो, तो आपकी कंपनी जो है ऑलरेडी अट्रैक्टिव बन जाती है आपके कस्टमर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। ठीक है, international business also goes as one of the methods for accomplishing development in the firms confronting extreme market conditions in local market। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि लोकल मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स किसी वजह से डिमांड में नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर आपको लग भी नहीं रहा कि थोड़े टाइम तक इनकी कोई डिमांड अराइज होगी, तो आप इन प्रोडक्ट्स को जो है बाहर सेल कर सकते हो इफ देयर इज एनी डिमांड, राइट। आपके पास एक ऑप्शन खुल जाता है कि अगर इस टाइम पर मेरा ये प्रोडक्ट यहाँ पर सेल नहीं हो रहा है, तो आई हैव एन ऑप्शन कैन that this could be sold in any other country or in any other nation. Okay, next is it enhances business vision as it makes firms more aggressive and diversified। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि आपके पास जो भी दो कंपनी के ऑप्शंस है, एक कंपनी सिर्फ इंडिया में ऑपरेट कर रही है, दूसरी कंपनी जो है बहुत सारी उसकी ब्रांचेस है, वो 3-4 नेशंस में ऑपरेट कर रही है। तो विच वन विल लुक मोर अट्रैक्टिव टू यू? द सेकेंड वन, राइट। और उससे हमारी जो फर्म है वो बहुत सारी चीजें सीख पाती है, बहुत सारी ऑपरेशंस में एंगेज हो पाती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में सीख पाती है, और अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करके अग्रेसिवली परफॉर्म कर पाती है, अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से बेच पाती है, राइट। बिल्कुल। और आपकी जो अपने एम्प्लॉइज है, आपकी जो मैनेजमेंट है जो उस कंपनी को रन कर रही है, वो अपनी स्किल्स को ब्रश कर पाते हैं, राइट। स्किल डेवलपमेंट का एक मौका भी हमें इंटरनेशनल बिजनेस देता है। वेरी नाइस बेटा। अब इसको करने से पहले एक सेकेंड। अच्छा, तो हमने इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में तो पढ़ लिया कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, अपनी डोमेस्टिक बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाकर बिजनेस करना। ठीक है, तो अब हमारे लिए एक टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इंटरनेशनल बिजनेस हम समझ गए। डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है? डोमेस्टिक बिजनेस होता है अपनी ही कंट्री में बिजनेस करना सिर्फ। ठीक है, डोमेस्टिकली बिजनेस करना अपनी, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ही अगर कोई कंपनी बिजनेस कर रही है तो व्हाट इज इट डूइंग? इट इज डूइंग डोमेस्टिक बिजनेस। और अगर कोई कंपनी इंडिया और बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी बिजनेस कर रही है तो वो क्या कर रही है? वो एंगेज्ड है इंटरनेशनल बिजनेस में। ओके, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस के क्या पॉइंट्स हैं, अब उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। First of all, domestic trade. Domestic business refers to economic transactions that take place within the borders of a particular country. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन समझते हो, लेन देन जो भी आप कर रहे हैं वो आप कहाँ कर रहे हैं? विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, है ना, आपकी अपनी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर आप जब ये लेन देन अपना कर रहे हैं तो इसको कहते हैं हम डोमेस्टिक बिजनेस। ठीक है,
और इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ अ कंट्रीज बॉर्डर. ओके, नाउ व्हाट यू आर डूइंग हियर इज, आप अपनी कंट्री के बियॉन्ड जाकर, बाहर जाकर जो है बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज हो रहे हैं. ठीक है, सो इसको कहते हैं हम इंटरनेशनल बिजनेस. सेकेंड, बायर एंड सेलर. अब जो आपका डोमेस्टिक बिजनेस है उसमें आपके बायर और सेलर क्या सेम कंट्री से होंगे? बिल्कुल, है ना, हमारे बायर और सेलर जो है सेम कंट्री के होंगे, इसीलिए उसको डोमेस्टिक बिजनेस कहा जाता है. हमारा सेलर भी डोमेस्टिक है, मतलब इंडियन है, और हमारा बायर भी इंडियन है. ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डोमेस्टिक बिजनेस. ठीक है, और जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है वहां पर हमारे जो सेलर और बायर है वो दोनों अलग अलग कंट्री से हो सकते हैं. हो सकता है हमारा सेलर जो है वो इंडिया से है, हमारा बायर जो है वो यूएसए से है, या फिर हमारा जो सेलर है वो यूके से है और हमारा जो उस चीज को खरीद रहा है बायर वो इंडिया से है. ठीक है, सो इसे कहते हैं हम सेकेंड डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि बायर एंड सेलर डोमेस्टिक बिजनेस में सेम कंट्री से होते हैं और बायर एंड सेलर हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में सेपरेट नेशन से होते हैं, अलग अलग नेशन से होते हैं. देन करेंसी. अब अगर मैं जाऊं मार्केट में और मैं उनको डॉलर्स दे दूं, इंडिया में मैं मार्केट जाऊं और मैं उनको डॉलर्स दे दूं कि भैया मुझे 1 किलो आप ये जो फ्रूट्स हैं ये दे दीजिए और ये लीजिए डॉलर्स, तो क्या वो जो शॉपकीपर है वो ये करेंसी एक्सेप्ट करेगा? क्या मतलब वो इसको जो है ले पाएगा, इसमें डील कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना. तो हमारा जो डोमेस्टिक बिजनेस है वहां पर बेटा जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हो वो आप करते हो उस करेंसी से जो उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी होती है, क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस क्या है? डोमेस्टिक बिजनेस जिस कंट्री में हम रह रहे हैं बायर भी वहीं का है, सेलर भी वहीं का है. ठीक है, तो वो डील किस में करेंगे? जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ पर हमारी जो भी डील होगी, सेल परचेज, इट वुड बी फ्रॉम रुपीज, राइट. हम जो भी खरीदेंगे जो भी बेचेंगे उसको इन द फॉर्म ऑफ रुपीज हम रखेंगे, राइट. और जब हम इंटरनेशनली बिजनेस करते हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों की करेंसी सेम हो. ठीक है, हो सकता है बायर की करेंसी अलग हो, सेलर की करेंसी अलग हो. अगर मैं यूएसए के किसी क्लाइंट के साथ डील कर रही हूँ तो हो सकता है कि वो मुझे डॉलर्स में पे करे. ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि करेंसी ऑफ डीलिंग जब डोमेस्टिक बिजनेस में हम होते हैं तो बायर और सेलर की सेम करेंसी यूज होती है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो बायर और सेलर की जो करेंसी है इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, नेक्स्ट इज होमोजेनिटी. जब आप जज करोगे बाहर की ऑडियंस को, बाहर के कस्टमर्स को जो आपके बिजनेस से कुछ खरीदें, ठीक है, तो आप उस केस में देखोगे कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, राइट, वो किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं, उनका टेस्ट कैसा है. ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट बनाओगे. तो इन द केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस जब आप डोमेस्टिकली डील करते हो यानी कि आप इंडिया में डील कर रहे हो, अपनी कंट्री में डील कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको पता होता है कि हाँ कौन सा ट्रेंड चल रहा है. आपको इंडिया में थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि हाँ हमारी कंट्री में क्या ट्रेंड इस टाइम चल रहा है. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आजकल जो हमारे व्हीकल्स जो ऑप्ट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं ज्यादा. ठीक है, उसका नया ट्रेंड है तो यहाँ के लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है प्रेफर कर रहे हैं. हो सकता है कि यूएस में जो है इससे भी आगे का कोई जो है चीज चल रहा हो, उनकी प्रेफरेंसेस अलग हो, वहां पे रोबोटिक व्हीकल्स जो है प्रेफर की जा रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप जब बात करते हैं डोमेस्टिक बिजनेस की तो आपके लिए जज करना थोड़ा सा इजी होता है कि क्या ट्रेंड, कौन सी प्रेफरेंसेस जो है हमारी कंट्री में चल रही हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस देन इट इज डिफिकल्ट टू जज कि हाँ वहां की जो ऑडियंस है, वहां के जो कस्टमर्स हैं, उनकी प्रेफरेंसेस कैसी होंगी. हमें थोड़ा सा ज्यादा स्टडी करना पड़ता है और उनकी प्रेफरेंसेस हमारी प्रेफरेंसेस से अलग होती हैं. ओके,
नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब जब आप डोमेस्टिक बिजनेस ओपन करोगे अपना, तो उस केस में आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए होगी या कम चाहिए होगी? जिस कंट्री में आप रहते हो, अगर आप वहीं पर अपना बिजनेस ओपन करोगे, तो आपको जो कैपिटल है या जो पैसा है, कैपिटल, आई होप यहाँ पे सब समझते होंगे, इट इज द टर्म वी यूज इन अकाउंट्स, है ना? कैपिटल हमारा इनिशियल पैसा जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल जब हम डोमेस्टिक बिजनेस ओपन करते हैं, तो उस केस में ये कैपिटल जो है हमें कम चाहिए होती है एज कंपेयर टू जब हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेके जाने वाले हैं, राइट? सो कैपिटल नीडेड इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस वुड बी, you know, less as compared to when we are opening a business on the international level. Okay? नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शंस। तो डोमेस्टिक बिजनेस, अब मैं इंडिया से हूं, अब मैं इंडिया में ही बिजनेस अपना ओपन कर रही हूं, तो मेरे लिए रिस्ट्रिक्शंस जो है थोड़ी सी कम होंगी, राइट? और अगर मुझे अपना बिजनेस इंटरनेशनली ओपन करना है, मुझे कोई ब्रांच खोलनी है बाहर, या मुझे ऑल ओवर न्यू बिजनेस अपना सेटअप करना है, तो मुझे जो है बाहर जाकर बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी लेजिस्लेशंस को जो है देखना पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, उन रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, तभी जो है मैं अपना बिजनेस बाहर सेटअप कर पाऊंगी। ओके, सो रेगुलेशंस इन डोमेस्टिक बिजनेस इज लेस, ओके, एज कंपेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस। तो हमारे यहाँ पे अगर आप बिजनेस ओपन करेंगे अपनी ही कंट्री में, तो आपको थोड़ी सी कम रेगुलेशंस या रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस कम फेस करनी पड़ेंगी एज कंपेयर टू जब आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनली ओपन कर रहे हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज बिजनेस रिसर्च। तो बिजनेस रिसर्च में क्या पॉइंट है कि आपको थोड़ी सी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी जब आपको अपने बिजनेस को इंटरनेशनली लेकर जाना है, इंटरनेशनली आपको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, इंटरनेशनल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, तो आपको बिजनेस रिसर्च में ज्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ओके, और अगर आपको अपना बिजनेस जो है डोमेस्टिक ही रखना है, तो आपको रिसर्च में जो है थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, थोड़ा सा कम जो है अपना एक्सपेंस लगेगा, क्योंकि आप जिस कंट्री में हैं उसी कंट्री में जो है आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। ओके, सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक पे विच इज इंटरनेशनल ओरिएंटेशंस। अब बेटा ये एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पर हमारे सामने ना कुछ ऐसी ओरिएंटेशंस है या फिर कुछ ऐसे तरीके हैं जिस हिसाब से हम बिजनेस को अपने चलाते हैं, ठीक है? इनको हम चार में क्लासिफाई करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज EPRG। ओके, सो EPRG अप्रोच भी कहते हैं इसको। ये किस लिए है कि हम अपने बिजनेस को अगर इस अप्रोच की, इनमें से किसी भी अप्रोच के अंडर रन कर रहे हैं, तो हम कैसे रन करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास चार अप्रोचेस है इंटरनेशनल बिजनेस की। सबसे पहली है एथनोसेंट्रिक, सेकंड वन इज पॉलीसेंट्रिक, थर्ड वन इज रीजियोसेंट्रिक एंड फोर्थ वन इज जियोसेंट्रिक। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला है हमारा एथनोसेंट्रिक। सो एथनोसेंट्रिक इज द अप्रोच इन विच द कंपनीज इन्वेस्ट एंड वर्क प्राइमरली अकॉर्डिंग टू देयर होम कंट्री। ठीक है, आपकी कंपनी अगर एथनोसेंट्रिक अप्रोच फॉलो करती है, तो आपकी कंपनी कहाँ अपना सेटअप करेगी, कहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, अपनी होम कंट्री के। ठीक है, तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच जब आप अपनाते हैं, तो यू वर्क अकॉर्डिंग टू योर होम कंट्री। ठीक है, आप अपना बिजनेस भी होम कंट्री में खोलते हो, आप वर्क भी होम कंट्री के अकॉर्डिंग करते हो, और आपकी प्रायोरिटी भी क्या होती है, आपकी होम कंट्री। ओके, सेकेंड वन इज पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है बेटा कि आप किसी भी मतलब बाहर की कंट्री को जो है टारगेट करते हो, यहाँ पे आप वर्क करते हो अपनी
अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो कि दूसरी कंट्री में है, ठीक है। फर्स्ट था एथनोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक को आप याद कर सकते हो एथनिसिटी से, आपकी एथनिसिटी इंडियन है, ठीक है। तो आप एथनोसेंट्रिक अप्रोच जब फॉलो करते हो तो उस केस में आप इन्वेस्ट करते हो अपनी ही कंट्री में, फोकस करते हो अपनी ही कंट्री पर और वर्क करते हो अपनी ही कंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रोडक्ट्स भी वैसे बनाते हो, सर्विसेज भी वैसे देते हो, ठीक है। पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है, पॉलीसेंट्रिक में हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गई और कुछ कैंपेन्स आप रन कर रहे हो, तो वो आप किसके अकॉर्डिंग रन कर रहे हो, वो आप रन कर रहे हो दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग या फिर जिस कंट्री को आप अभी टारगेट करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग, विच इज नॉट योर होम कंट्री, इट वुड बी एक्सेप्ट द होम कंट्री, ओके। नेक्स्ट वन इज रीजियोसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। अब रीजियोसेंट्रिक अप्रोच क्या होता है, यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट बनाओगे, जो भी स्ट्रैटेजी बनाओगे, जो भी आप अपने ऑपरेशंस बिजनेस में करोगे, उनको करोगे अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन आप बोलोगे कि पॉलीसेंट्रिक में आप बोल रहे थे बाहर के अकॉर्डिंग करेंगे, तो रीजियो में भी बाहर के अकॉर्डिंग करेंगे, हाँ बिल्कुल बाहर के अकॉर्डिंग करेंगे, बट पॉलीसेंट्रिक में आप क्या कर रहे थे, किसी पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से काम कर रहे थे, ओके। जैसे कि आपको अगर यूएस के लिए कोई चीज बनानी है तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, ठीक है। बट जब हम रीजियो सेंट्रिक की बात करेंगे तो एक रीजन, जैसे कि अगर एशिया की मैं बात करूं तो एशिया, सदर्न एशिया, नॉर्दर्न एशिया, ठीक है। अगर ऐसे मैं बात करूं तो एक रीजन है पूरा, जैसे कि सदर्न एशिया में हमारा इंडिया आ गया, श्रीलंका आ गया, बांग्लादेश आ गया, नेपाल आ गया, अफगानिस्तान आ गया, ठीक है, चाइना आ गया। तो ये सब क्या है, ये हमारे सदर्न एशिया के पार्ट हैं। तो अगर जब हम इन सबको एक साथ टारगेट करेंगे तो हम टारगेट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक रीजन को, ठीक है। तो इसे कहा जाता है रीजियो सेंट्रिक अप्रोच। आप अपने प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज और मार्केटिंग किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रीजन को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये रीजन कैसे होता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, सदर्न एशिया हो गया, नॉर्दर्न एशिया हो गया, आपका जो है सदर्न अफ्रीका हो गया, तो ऐसे कुछ रीजन्स को क्लासिफाई किया जाता है, ओके। नेक्स्ट वन इज जियोसेंट्रिक अप्रोच। तो जियोसेंट्रिक अप्रोच में बेटा जियो मतलब वन, ठीक है। यहाँ पे ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द वर्ल्ड आर केप्ट इन माइंड टू डेवलप द स्ट्रैटेजीज एंड टेक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ग्लोबल जाने वाला प्रोडक्ट बनाते हो जो कि सब यूज कर पाए, ठीक है, जिसमें कि कोई डिफरेंस ही ना हो। जैसे अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जो अपना जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो हर एक कंट्री में सेम तरीके से यूज होता है, राइट। तो वो क्या होता है, आपने पूरे वर्ल्ड को माइंड में रख के एक चीज को डिजाइन किया जो कि हर जगह पे सेम तरीके से यूज की जाएगी, ठीक है। उसे हम कहते हैं जियोसेंट्रिक अप्रोच, ओके। I hope these approaches are clear to you. Okay, so these are some international orientations under international business. Now, one important topic which is modes of entry in international business. आपको अगर इंटरनेशनल अपने बिजनेस को लेकर जाना है, आपको एंटर करना है इंटरनेशनल बिजनेस में, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, सो आपको अपने बिजनेस को अब इंटरनेशनल लेके जाना है, तो सबसे इजी तरीका या फिर जिसे मैं कहूँ कि आप जहां से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट वुड बी एक्सपोर्टिंग, ओके। आप क्या कर रहे हैं, आपको अपने बिजनेस को जब भी इंटरनेशनल लेकर जाना है तो आपको स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट विद एक्सपोर्टिंग, ओके। एक्सपोर्टिंग सबको पता है, आप अपने प्रोडक्ट्स को बाहर सेल कर रहे हैं, ओके। आपको यहाँ पर
बाहर पूरा अपना सेटअप नहीं करना पड़ रहा, कोई कंपनी नहीं खोलनी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है बड़ी, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट को बस बाहर भेज रहे हो, ठीक है। किसी ने कोई आपके पास ऑर्डर प्लेस किया और आपने अपने जो प्रोडक्ट है उसको बाहर जो है भेज दिया फॉर सेलिंग पर्पस, दैट इज एक्सपोर्टिंग। ओके, you are not setting up a big organization, you are not setting any company, you are just exporting. Okay, अब एक्सपोर्टिंग में आप बोलोगे ये कैसे होता है, तो बेटा जब आप किसी अपने क्लाइंट को, किसी कस्टमर को अपने यहाँ से प्रोडक्ट जो है शिप करवा देते हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सपोर्टिंग। इसमें बहुत सारे जो है एजेंट्स भी हमारी हेल्प करते हैं और हमें एक प्रॉपर कोई कंपनी सेटअप नहीं करनी पड़ती, बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है और हम जो है एक्सपोर्टिंग की प्रोसेस में एंगेज हो पाते हैं। ओके, तो इजीएस्ट था हमारा, सबसे इजी एंट्री करने का जो सिस्टम है दैट इज थ्रू एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग। Exporting goods and services refers to sending them from home country to a foreign country. ठीक है? Similarly, importing goods and services means purchasing or bringing them from foreign market to home country. ठीक है? So next is contract manufacturing. अब contract manufacturing होता है बेटा, इसमें आप क्या करते हो, किसी भी आउटसाइड कंट्री को आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, अगर इंडिया में हम देखें तो आईफोन्स बन रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि एप्पल ने हमारी कंट्री में किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि प्लीज आप ये जो है इस चीज को बना दो, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कोई बाहर की इंटरनेशनल कंपनी हमारी जो दूसरी हमारी होम कंट्री में किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग। अब लाइसेंस देने का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि फ्रेंचाइजी एक वर्ड है, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग को हम एक साथ जो है पढ़ेंगे। तो लाइसेंसिंग बेटा होता है जब आप किसी थर्ड पार्टी को, या फिर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पहले फ्रेंचाइजिंग समझ लेते हैं। चलो, फ्रेंचाइजिंग सबने सुना है, फ्रेंचाइजिंग क्या होता है आप सबको पता है। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, बर्गर किंग है, ये हम बहुत सारी कंट्रीज में देखते हैं, राइट। तो ये किसी कंट्री से जहां से जो है आया, तो उस कंट्री ने दूसरी कंट्री में किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन को इसकी जो है राइट्स दे दी, ठीक है। इसको क्या किया, बेटा आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फोकस ऑन द क्लास। अगर आप यहाँ पे सिर्फ आपस में ये बातें डिस्कस करने आए हैं तो यू कैन लीव द क्लास। So we were discussing about franchising. So when we see that there is McDonald's, KFC, we can see Burger King. So इनके जो different outlets हैं वो different countries में खुले होते हैं, ठीक है। But initially यहाँ पर क्या था, सिर्फ एक ही मैकडोनल्ड्स आया, राइट। अब इस मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट किया कि they would have a logo like this, they would have a menu like this, उनकी सर्विसेज, उनका सेटअप, सिटिंग स्पेस ऐसा होगा, ऑर्डर करने का तरीका ये होगा, द ड्रेस विच देयर एम्प्लॉइज विल वेयर वुड बी लाइक दिस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। नाउ ये चीज बहुत पॉपुलर हो गई, मैकडोनल्ड्स बहुत पॉपुलर हो गया एक जगह पे, तो उन्होंने अपने दूसरे आउटलेट्स खोले। अब ये आउटलेट्स जो है दूसरी कंट्री में भी लोग डिमांड करने लगे। तो अब मैकडोनल्ड्स ने बोला कि हम ऐसे नहीं आपको अलाउ कर सकते, बट वी कैन गिव यू अ फ्रेंचाइजी। आपको फ्रेंचाइजिंग में क्या करना होता है, एक अमाउंट पे करना होता है ओरिजिनल ओनर को, और वो आपको फ्रेंचाइजी दे देता है कि हाँ आप अब ये चीज, ये आउटलेट आप खोल लीजिए, ठीक है। लेकिन वो आपके सामने कुछ रूल्स रखता है, कुछ शर्तें रखता है, आपसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है कि आप जो है उसकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। क्योंकि बेटा जब आप देखोगे ना फ्रेंचाइजिंग में, तो आपको पता है कि मैकडोनल्ड्स ऑलरेडी एक सेटअप ब्रांड है। अब उस ब्रांड का जो नाम खराब हो सकता है, वो किसी भी आउटलेट पे हो सकता है। तो मैकडोनल्ड्स बहुत ध्यान रखता है कि वो अपने जो बाकी फ्रेंचाइजी जो उसके ले रहे हैं उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाकर उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क करवाए।
क्योंकि अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूरे ब्रांड का नाम खराब होता है, ठीक है। तो फ्रेंचाइजिंग क्या होता है बेटा? फ्रेंचाइजिंग होता है जब आप किसी भी पार्टी को अपने नाम को यूज करने का, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन कर रहे हो उसके साथ कि वो हमारा ब्रांड का नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए वो पार्टी आपको कुछ मनी पे करती है और आपकी बताई हुई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। सो दैट इज फ्रेंचाइजिंग। अब लाइसेंसिंग क्या होता है बेटा? लाइसेंसिंग में भी क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, आपके पास कुछ लाइसेंस है, फॉर एग्जाम्पल कुछ मैन्युफैक्चर करने का, तो उस केस में आपके पास अब सिर्फ आप ही मैन्युफैक्चर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी आई, समझ लो रोबोटिक्स करके कोई टेक्नोलॉजी आई और उसका लाइसेंस सिर्फ आपके पास है कि आप बना सकते हो, ओके। तो इस केस में अब किसी थर्ड कंपनी को भी उसके पास रिसोर्सेज है, उसके पास पैसा है, ठीक है। तो उस केस में वो कंपनी चाहती है कि आपके साथ साथ वो भी ये बनाए, ठीक है, रोबोटिक्स में काम करे। तो आप क्या करते हो, आप उस दूसरी कंपनी को लाइसेंस दे देते हो अपने साथ कि हाँ ये लाइसेंस हम जो है आपको दे रहे हैं और ये आप जो है 5 साल तक इस चीज पे जो है इस चीज पे वर्क कर सकते हो, इस चीज को बेच सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप फ्रेंचाइजिंग कर रहे थे वैसे लाइसेंसिंग भी होता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं, एक होता है लाइसेंसर और एक होता है लाइसेंसी, ठीक है। तो अग्रीमेंट होता है बिटवीन द लाइसेंसर एंड लाइसेंसी। लाइसेंसर कौन होता है? जो जिसके पास ओरिजिनली लाइसेंस होता है, ठीक है। और लाइसेंसी क्या होता है? लाइसेंसी होता है जो जिसको ये लाइसेंस अभी चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली जब आप फ्रेंचाइजी की बात कर रहे थे तो इस केस में हम जो है पूरा का पूरा किसी चीज को कॉपी कर रहे थे, बट लाइसेंस में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो है यहाँ पर पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेड सीक्रेट्स, टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल आपने जैसे मैंने कहा रोबोटिक्स की कोई टेक्नोलॉजी डिस्कवर करी, ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी का लाइसेंस जो है आप दे सकते हैं। जैसे कि अभी कोविड जब आया था तो कोविड में हमने देखा बहुत सारी वैक्सीन जो है आई, बहुत सारी वैक्सीन बनी। तो उस केस में रिसर्च सबने नहीं करी थी, बट क्या हुआ कि एक कंपनी ने रिसर्च करी बहुत अच्छे से, ठीक है, और फिर उसने क्या किया, दूसरी कंपनीज को लाइसेंस दे दिया अपना जो है, उन्होंने फॉर्मूला शेयर किया और उस चीज का लाइसेंस दे दिया कि आप इस चीज को जो है आप ऐसे इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लाइसेंसिंग कहते हैं। दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर शेयरिंग कॉपीराइट्स, या कोई टेक्नोलॉजी आपने डिस्कवर करी है, पेटेंट्स आप शेयर कर रहे हैं, ट्रेड सीक्रेट्स आप शेयर कर रहे हैं, तो इस केस में आप लाइसेंसिंग का यूज करते हैं, ठीक है, दूसरे के साथ शेयर करने के लिए जो कि दूसरी कंट्री में है, तो आप लाइसेंसिंग का यूज करते हैं, ओके। फ्रेंचाइजिंग हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर। अब बेटा जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर होता है जब आप कोलैबोरेट करके, डील करके किसी दूसरी कंपनी के साथ जो है बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि किसी को जो है एक्वायर नहीं किया जा रहा जॉइंट वेंचर में, आप जॉइंटली साथ में आकर बिजनेस कर रहे हैं। जैसे हम सुनते थे मारुति सुजुकी, तो मारुति इंडिया की कंपनी है, सुजुकी जापान की कंपनी थी, तो वो साथ में आकर एक जो है ऑटोमोबाइल कंपनी को ओपन करते हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी में जो है अपने रिसोर्सेज लगाते हैं, साथ में काम करते हैं, तो इस चीज को कहा जाता है जॉइंट वेंचर, ठीक है। साथ में आकर उन्होंने जो है कोई बिजनेस सेटअप किया, जिसमें से एक कंपनी जो है डोमेस्टिक कंपनी होगी और दूसरी कंपनी जो है फॉरेन कंपनी होगी, ओके। हाँ, वेरी नाइस, लाइक हीरो होंडा, सो हीरो वाज इंडियन कंपनी एंड होंडा वाज जापान, फ्रॉम जापान, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्न की प्रोजेक्ट्स। अब बाकी सब तो आपने थोड़े बहुत पहले सुने होंगे। टर्न की प्रोजेक्ट क्या होता है बेटा? टर्न की प्रोजेक्ट बेसिकली रिलेट करता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट से, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल ब्रिज बनाना है, आपको बनाना है, रोड्स बनाने हैं, ठीक है, आपको हाईवे बनाना है, तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब बहुत बड़े मैक्रो लेवल पे जो है किए जाते हैं। नाउ यहाँ पर क्या होता है बेटा कि आपको ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है
ये जैसे हमारी फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई हाईवे बनना है या इंडिया में कोई रोड बनने हैं, और वो वाला प्रोजेक्ट हमने क्या किया, किसी दूसरी बाहर फॉरेन की कंट्री को दे दिया, जो हम बेसिकली सुनते भी हैं कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं अपने यहाँ के प्रोजेक्ट्स बाहर दे देती हैं। जैसे कि अफगानिस्तान में हमने देखा था कि उन्होंने आई आई गेस इंडिया को भी कुछ प्रोजेक्ट दिए थे और चाइना को भी कुछ प्रोजेक्ट दिए थे कि आप यहाँ हमारे ब्रिज बना, ये वाला ब्रिज आप बनाएंगे, ये वाले जो हाईवेज हैं ये आप डिजाइन करेंगे, ठीक है, इन पे काम आप करेंगे, ठीक है। तो टर्न की प्रोजेक्ट में क्या होता है बेटा, टर्न की प्रोजेक्ट में आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, जो कि बाहर की हमारी जो कंपनी है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम दे देते हैं आपको, मतलब कि सारी राइट्स दे देते हैं कि आप आइए और यहाँ पर इसको बनाइए, ठीक है। और आपको क्या करना है, जब वो पूरा का पूरा बन जाएगा तो वो आपको हैंडल कर दिया जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या देखा कि आपका जो प्रोजेक्ट था वो मे बी आपकी कंपनी को मिला था, लेकिन आपने क्या किया, उसको एक एक्सपर्ट को दे दिया जो कि बाहर की कंपनी थी, ठीक है, उसने उसको बनाया, पूरा फुलफिल किया, और जो कीज थी वो आपके हाथ में दे दी, ठीक है। तो आपके हाथ में क्या है, सिर्फ कीज है, तो इसलिए इसको कहा जाता है टर्न की प्रोजेक्ट। यहाँ पर क्या होता है कि एक फॉरेन कंपनी को हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप आकर यहाँ पर मैन्युफैक्चर करिए और उसके बाद ये कीज जो है हमारे हाथ में दे दीजिए, ठीक है। सो दिस इज टर्न की प्रोजेक्ट्स। ये बेसिकली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो है फॉलो किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपको ब्रिज बनाने हैं, रोड बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या सुनते हैं, वो पेट्रोलियम फॉर एग्जाम्पल कहीं पे डिस्कवर हुआ, ठीक है, पेट्रोल का हमें कुआं डिस्कवर हुआ कहीं, तो अब उसको खोदने के लिए, उस पे वर्क करने के लिए शायद हमारे पास प्रॉपर मशीनरी नहीं है, ठीक है। तो हमें चाहिए एक ऐसे एक्सपर्ट की हेल्प जो इस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम कर चुका हो, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट को हैंडल करिए, लेकिन नाम हमारा ही रहेगा, ठीक है। द पर्सन विल वर्क फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री बट नेम वुड बी आर्स। वो क्या करेगा, सारा काम करेगा और लास्ट में कीज जो है आपके हाथ में दे देगा, ठीक है। सो दैट इज टर्न की प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन इज एक्विजिशन। अब एक्विजिशन में आप लोगों ने सुना ही होगा, मर्जर एंड एक्विजिशन वगैरह हम पढ़ते हैं। तो एक्विजिशन क्या होता है, जब एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को अक्वायर कर लेती है, ठीक है, और वहां पर जो भी ऑपरेशंस हो रहे थे, जो भी एम्प्लॉइज थे, सब बड़ी कंपनी के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज एक्विजिशन। अगर आप इंडिया से जाते हैं श्रीलंका में और वहां पर जाकर आप किसी कंपनी को अक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, आपकी कंपनी उस कंपनी को अक्वायर कर लेती है, तो आप एक्विजिशन परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनली, ओके। Acquisitions occur when a firm purchases an existing foreign firm to gain access to its market share and clients, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर हम एज अ इंडियन कंपनी है और हम बाहर जाकर श्रीलंका की कंपनी को अक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, अक्वायर करने का मतलब कि उसकी ऑपरेशंस को अपने हाथ में ले लेते हैं, उसको परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं, ठीक है। Acquisitions allow firms to quickly show a site, exhibit facilities, distribute network and client base in foreign market, ठीक है। तो बहुत सारी बार ऐसे होता है कि शायद, जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल देती कि हमारी इंडियन कंपनी जो है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करना चाहती है। अब उसको लग रहा है कि मैं कैसे जो है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करूं, तो उसने क्या किया कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कोई श्रीलंका की कंपनी थी, ठीक है, और वो जो थी, मे बी वो जो है हमारे, जो हम यहाँ पर काम कर रहे थे वैसे ही काम वो श्रीलंका में कर रही थी। तो हमें क्या लगा कि इसको अक्वायर करके जो है हमें हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर पाएंगे। तो हमें जाकर पूरा नया सेटअप नहीं करना पड़ा, वहीं के एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, वहीं के ऑपरेशंस रन हो रहे थे, वहीं की रिसर्च चल रही थी। बस हमने क्या किया, उस एग्जिस्टिंग कंपनी को जो है खरीद लिया, अक्वायर कर लिया, और बॉस जो है हम बन गए। बाकी सब चीजें जैसी थी वैसे ही चल रही थी, अब लेकिन लीडरशिप जो है हमारी आ गई, ठीक है। बिल्कुल टेक ओवर जो है, बट टेक ओवर बेटा, टेक ओवर इज मोर अग्रेसिव। टेक ओवर में क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं, आप ऐसे करते हैं कि आपको किसी भी हालत में इस कंपनी को खरीदना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक,
ठीक है। तो टेक ओवर जो है थोड़ा सा अग्रेसिव होता है एज कंपेयर टू एक्विजिशन। एक्विजिशन में दोनों कंपनीज अग्री करती हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस पे जो है सहमति ली जाती है, और जो है ये प्रोसेस ऐसे किया जाता है दोनों की रजामंदी से। लेकिन जब आप टेक ओवर की बात करते हैं तो टेक ओवर थोड़ा सा अग्रेसिव होता है। अगर मैं कहूँ कि मुझे ये कंपनी टेक ओवर करनी है तो ये थोड़ा सा जो है अग्रेसिव होता है। शायद दूसरी कंपनी का जो है इतना, उसकी बात को इतना महत्व नहीं दिया जाता, ठीक है। तो टेक ओवर व्हेन कंपेयर टू एक्विजिशन इज अ लिटिल अग्रेसिव, ठीक है। नाउ चैलेंजेस अंडर इंटरनेशनल बिजनेस। अब क्या मेरे लिए इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होना इतना आसान है कि मतलब हाँ मैंने कहा कि अक्वायर कर लो, जॉइंट वेंचर कर लो, एक्सपोर्ट कर लो, क्या ये सब इतना इजी है जितना जो है हम इसको ऐसे बोल रहे हैं? नो, राइट। देयर आर सेवरल चैलेंजेस जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम अपनी कंपनी को इंटरनेशनल लेके जाना चाह रहे हैं। ओके, सो व्हाट आर दीज चैलेंजेस? फर्स्ट वन इज लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स, ठीक है। अब आपको यूएस में एंटर करना है, ठीक है, या फिर यूएस का एग्जांपल यहाँ पे छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फ्रांस में कोई कंपनी अपनी ओपन करनी है, ठीक है, तो आपकी कंपनी को वहां की लैंग्वेज, वहां का कल्चर, उसके बारे में पहले समझना पड़ेगा। देन ओनली यू वुड बी एबल टू ऑपरेट इन दैट नेशन, राइट। तो सबसे पहला बैरियर जो इंटरनेशनल बिजनेस के दौरान आता है वो है लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर। अब जैसे मैकडॉनल्ड्स हम देखते हैं इंडिया में ओपन हुआ तो उन्होंने क्या किया, हमारे कल्चर को समझा, राइट। यहाँ पर जब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन वेजिटेरियन थी तो उन्होंने अपने फास्ट फूड में बहुत सारे आइटम्स वेजिटेरियन ही जो है इंट्रोड्यूस करे, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन वेजिटेरियन थी। तो ये क्या किया उन्होंने, ये उन्होंने हमारे कल्चर के साथ अपने प्रोडक्ट्स को अलाइन किया, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बीफ को कंज्यूम करना, बीफ को बेचना इज इलीगल, ठीक है, ऐसा नहीं किया जाता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो मैकडॉनल्ड्स ने उसको फॉलो करते हुए कोई भी बीफ आइटम यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो व्हाट इज मैकडॉनल्ड्स डूइंग? इट इज अलाइनिंग विद द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर कंट्री, राइट। तो जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं तो आपको दूसरी कंट्री का कल्चर, दूसरी कंट्री की लैंग्वेज, दूसरी कंट्री का ट्रेडिशन, ये सब चीजों को ध्यान में रखकर ही अपने बिजनेस को जो है इंटरनेशनल करना होता है। ओके, interacting with people from different cultures and languages is one of the main obstacles in international business, ठीक है। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम समझ पाए कि दूसरे कल्चर में इस चीज का क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर ये चीज वहां पर ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होता है कि वहां का कल्चर और ट्रेडिशन कैसा है, वहां की लैंग्वेज को समझना होता है, तभी आप जो है सक्सेसफुल दूसरी कंट्री में हो पाते हो। बेटा, am I audible to you all? Okay, okay. Thank you. Okay, so first challenge was the language and cultural barrier जो दोनों countries में हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज। अब मुझे किसी दूसरे नेशन में ऑपरेट करना है, दूसरे नेशन में अपना बिजनेस रन करना है, तो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ अलग होंगे, ठीक है, मेरी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे। तो जब भी मुझे अपने बिजनेस को किसी दूसरी थर्ड कंट्री में ओपन करना है, तो वहां पर जो है मुझे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करना पड़ेगा। अगर वहां पर ऐसे रूल्स हैं कि मैं अपनी जो है सब्सिडरी कंपनी नहीं ओपन कर सकती, तो मुझे उस रूल को मानते हुए जो है उस रूल के अकॉर्डिंगली अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी कंपनी की क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है, आप देखिएगा जब इंडिया में आपको कोई अपनी कंपनी ओपन करनी होती है ना, तो आपको सेवरल फॉर्म्स आर गिवन टू यू कि आपको ये फॉर्म भरना है, ये फॉर्म भरना है, ये फॉर्म यहाँ पर सबमिट होगा, ये फॉर्म यहाँ पर सबमिट होगा। तो ये क्या है बेटा, ये कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ लीगैलिटीज हैं जिसको हमें पूरा करना पड़ता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो compliance with a wide variety of legal and regulatory frameworks is required while operating in international markets. Companies have to manage their own set of rules, regulations, and commercial practices with reference to already established rules in each country. ठीक है, आपको local legal procedures को समझते हुए ही अपने business को operate करना होता है. Okay, तो second challenge is the legal complexities. Next one is political and economic stability. अब जैसे हम बात करें, चलो एक इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं। टाटा का नाम सबने सुना होगा, ठीक है। तो टाटा जब नैनो को मैन्युफैक्चर करने वाला था, तो उसने ये प्लांट जो है लगाया था कोलकाता में, ठीक है। अब कोलकाता में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उसने अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप यहाँ पर अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको आप कर लीजिए। लेकिन इलेक्शंस के बाद जो हुआ, टाटा ने पूरा उनका बात मानते हुए पूरी अपनी फैक्ट्री सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। दे परचेज्ड मतलब लैंड, और वहां पर उन्होंने अपने ऑपरेशंस को कैसे करना है वो सब प्लान करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन इलेक्शन के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है डिनाइड कि आप यहाँ पर आप यहाँ पर ये सब मैन्युफैक्चर मत करिए, क्योंकि यहाँ के लोकल्स को प्रॉब्लम है और वो अलाउ नहीं करना चाहते, और हम भी उनके साथ जाकर आपको अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से, पॉलिटिकल केस की वजह से एक कंपनी जो वहां पे ऑपरेट कर रही थी वो ऑपरेट नहीं कर पाई, ठीक है। तो ऐसे ही होता है इंटरनेशनल बिजनेस में भी। जब आप इंटरनेशनल अपनी कोई कंपनी या अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं, तो हो सकता है कि उस टाइम पे जो पॉलिटिकल कंडीशंस चल रही हों, तो वो जो है उस टाइम पे आपके फेवर में चल रही हों। बट नेक्स्ट टाइम जैसे कि अगर इलेक्शंस में वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है, तो हो सकता है जो नई पॉलिटिकल पार्टी आए उसके अलग रूल्स हों, ठीक है, वो आपको अलाउ ना करे, ठीक है। तो ये अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, यानी कि आप देखेंगे कि उस कंट्री में जैसे कि पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है वो बार-बार जो है चेंज हो रही है, ठीक है? तो वहां पर आपको ऑपरेट नहीं करना चाहिए। जहां पर भी ऐसा आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा, वहां पर आपको ऑपरेट करने से बचना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी चेंज हुई, वैसे ही दूसरी पार्टी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाना चाहेगी, ठीक है? तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है एज अ बिजनेस, ओके? तो नेक्स्ट चैलेंज इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उसके बाद आता है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करो, आप कोई भी बिजनेस ओपन करो, उसमें आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, उसमें आपको मिडल मैन की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सब होते हैं लॉजिस्टिक्स के पार्ट, सप्लाई चेन के पार्ट, ठीक है। तो आप जब भी दूसरी कंट्री में ऑपरेट करेंगे, तो आपको इन सब चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी कि आपको कहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, आपको कहाँ से जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, और आपको ये सब चीजें दूसरी कंट्री में फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लॉजिस्टिक फैसिलिटी आपकी कंट्री में जिस हिसाब से आप उसको समझते हैं, आप जानते हैं, वैसे आप उसको दूसरी कंट्री में
आपको जानने में टाइम लगता है, ठीक है। और लॉजिस्टिक बहुत जरूरी भी है। लॉजिस्टिक बेटा रॉ मटेरियल भी होता है। तो आपको कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करनी है, कोई भी गुड अपनी मैन्युफैक्चर करनी है, तो उसकी स्टार्टिंग तो रॉ मटेरियल से होगी, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि मुझे अच्छा रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ठीक है, कौन सी कंपनी जो है रॉ मटेरियल मुझे सप्लाई कर पाएगी, कौन सी कंपनी अच्छे रेट्स पे सप्लाई कर पाएगी। तो ये सब लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज से रिलेटेड भी मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, नेक्स्ट इज करेंसी फ्लक्चुएशंस एंड फाइनेंशियल रिस्क। अब हम देखते हैं कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपी जो है वो थोड़ा सा डॉलर हम देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। एक डॉलर में अभी आई डोंट नो व्हाट द रेट इज गोइंग, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 75, ठीक है, $1 ₹75 में हमें मिलता है। तो ये बहुत बड़ा जो है डिफरेंस है बिटवीन द करेंसी ऑफ टू नेशंस, राइट। तो अगर आप देखें कि कॉन्टिन्यूअसली करेंसी फ्लक्चुएशंस चलती रहेंगी, तो आपके लिए दूसरी कंट्री में ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली आपकी जो करेंसी है और उनकी जो करेंसी है उसके बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, तो ये भी एक हमारे लिए चैलेंज बन जाता है। नेक्स्ट इज मार्केट अडेप्टेबिलिटी। सो जब भी आप फॉरेन मार्केट में एंटर करते हैं तो इनिशियली आपको बहुत टाइम देना पड़ता है उस मार्केट को समझने के लिए, उस मार्केट में अकॉर्डिंगली वर्क करने के लिए, उस मार्केट के कस्टमर्स को समझने के लिए। ओके, तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है उस मार्केट में अडेप्ट करने के लिए, ठीक है, आपको टाइम लगता है। सो दैट कुड बी द नेक्स्ट चैलेंज। तो हमने अभी तक 6 चैलेंजेस पढ़ लिए जो एक फर्म को फेस करने पड़ते हैं जब वो इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करती है। तो फर्स्ट वन वाज लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर, जो कि सबसे बड़ा बैरियर है। सेकंड इज लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, कोई लॉज या फिर लीगैलिटीज अगर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, इनस्टेबिलिटी है, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कहाँ से मिलेगी, मिडिल मैन की हेल्प लेनी पड़ेगी, रिटेलर्स होलसेलर्स कहाँ से आइडेंटिफाई होंगे। तो ये सब आ जाता है हमारे लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में। नेक्स्ट वन इज करेंसी फ्लक्चुएशंस अगर बहुत ज्यादा हो रही हैं। और लास्ट वन इज मार्केट अडेप्टेबिलिटी, मार्केट में अडेप्ट करने के लिए जो है मुझे काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द चैलेंजेस जो एक कंपनी फेस करती है जब उसको अपना बिजनेस इंटरनेशनली ओपन करना होता है, रन करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन। सो अभी जैसे हमने पढ़ा था कि 19, जैसे अभी थोड़ा सा डिस्कस किया था बस, कि 1991 तक जो है हमारी कंट्री बंद थी, उसकी बाउंड्रीज क्लोज थी। और 1991 में पॉलिसी आई एलपीजी, जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारी कंट्री के बॉर्डर्स को ओपन कर दिया गया सो दैट हम बाहर वाली कंट्रीज के साथ डील कर पाए। ओके, तो यहाँ पर जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज जी, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में आइए देखते हैं क्या होता है ग्लोबलाइजेशन। Globalization is the process of international integration arising from the interchange of worldviews, products, ideas, and mutual sharing and other aspects of culture। ठीक है, आपने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपकी बाउंड्रीज को ओपन करके जो है एक्सचेंज बिटवीन द कल्चर्स, एक्सचेंज बिटवीन द आइडियाज, इस पे फोकस किया जा रहा है। आप अकेले कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, आप मिलकर काम कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज अ ग्लोब, राइट, और इस ग्लोब में आप जो है ऑपरेट कर रहे हैं। सो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ओके, globalization refers to the broadening set of interdependent relationships among people from different parts of the world। ठीक है, आप जो है डिफरेंट कंट्री से हो सकते हैं, डिफरेंट नेशन से हो सकते हैं, बट
आपका जो ऑपरेशंस जो हो रहे हैं वो आपस में मिलकर किए जा रहे हैं, द वर्ल्ड इज वन फैमिली ऐसे कंसिडर किया जा रहा है। आपकी बाउंड्रीज ओपन है दूसरी कंट्री में बिजनेस करने के लिए, दूसरी कंट्री से आइडियाज आप इनवाइट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री को रॉ मटेरियल आप सप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, जहां पर आपने अपनी बाउंड्रीज को ओपन कर दिया और आप बाहर के नेशन से, बाहर की कंट्रीज से इंटरैक्ट कर रहे हैं आसानी से, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब हमारा ग्लोबलाइजेशन में एंगेज होने से क्या बेनिफिट होगा बेटा। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। जैसे हम इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ते हैं कि आप अपने बिजनेस में जब इंटरनेशनली जाते हैं तो जहां पर आप अपनी कंपनी ओपन कर रहे हैं वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो ऐसे ही जब आप ग्लोबलाइजेशन में एंगेज होते हैं तो आप बाहर की वर्ल्ड से इंटरैक्ट कर रहे हो, ठीक है। उस केस में भी क्या है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अराइज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन। अब ग्लोबलाइजेशन यानी कि सारे वर्ल्ड को देखा जा रहा है तो हम ज्यादा पैसा भी अर्न कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आप देखोगे मोर और लेस इनके जो सिग्निफिकेंस है वो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के बेनिफिट्स जैसे हैं, ठीक है। तो आपको बाय चांस अगर ऐसा लगता है कि मुझे इंटरनेशनल बिजनेस के तो सिग्निफिकेंस या बेनिफिट्स याद हैं बट मुझे ग्लोबलाइजेशन के याद नहीं आ पा रहे बेनिफिट्स, तो आप उनको यहाँ पर जो है इन्वॉल्व कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। सो व्हेन वी गो ग्लोबल तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बहुत सारे ऐसे फर्म्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहें, अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप सिर्फ एक नेशन में हैं, आप डोमेस्टिकली काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास ऑप्शंस जो है वो लिमिटेड है जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहें। बट जब आप ग्लोबली जो है वर्क करते हो, ग्लोबली ऑपरेट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी हमारे पास जो है ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब आपको अगर हम देखें ग्लोबलाइजेशन के होने से, खुलने से हमें काफी सारी चीजें सीखने को मिली। इट कुड बी टेक्नोलॉजिकल, इट कुड बी रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो चीजें हमारे पास यहाँ पर नहीं थी, जो मशीनरी नहीं थी, जो आइडियाज शायद हमारे पास थोड़े से अलग थे, तो उनको क्या है, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग एक्सचेंज करके एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी भी बेटर हम सीख पाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बेटर बिल्ड कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नाउ विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन देयर इज एन कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ कैपिटल इन, और वी कैन से फाइनेंशियल फ्लोज, ठीक है। आपके पास जो है कंसिस्टेंटली कुछ फॉरेन कैपिटल फ्लो हो रहा है क्योंकि आप डील कर रहे हो आपस में, तो उस केस में आपका फॉरेन रिजर्व जो है वो भी बिल्ड हो रहा है। नेक्स्ट वन इज प्रमोट म्यूचुअल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। if your boundaries are open, you are open to interact, then आपको नहीं लगता कि आप दूसरे कल्चर को इजीली समझ पाओगे, रेदर देन कि आपने अपनी बाउंड्रीज क्लोज कर रखी है, आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। तो जब आप ग्लोबलाइजेशन में एंगेज होते हो तो आप दूसरी कंट्री की जो भी उसके ट्रेडिशंस हैं, जो उसके कल्चर हैं, उसको और अच्छे से समझ पाते हो, उसमें एंगेज हो पाते हो, ठीक है। So these were some of the significance, or we can say benefits of engaging in globalization or following globalization. नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखो इस टॉपिक का बेटा मतलब क्या है, ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो यू हैव टू नोट डाउन दैट ग्लोबलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, आपने पढ़ के जाना है ये। नेक्स्ट, ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब कि हमें ग्लोबलाइजेशन में एंगेज क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट्स। आपकी मार्केट्स जो है वो लिबरलाइज होगी। अभी हमने पढ़ा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बहुत सारे आपके पास ऊपर इम्पोज थे उनसे आपको फ्री कर दिया गया, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया, आपके जो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो कि सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर थे, अब उनको कुछ प्राइवेट फर्म्स को भी दे दिया गया, ठीक है।
तो इस केस में हमने देखा कि LPG में सबसे पहला पॉइंट है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइज करना, आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके ऊपर इम्पोज्ड हैं उनको कम करना, आपको लिबरलाइज करना, ठीक है। तो जब आप किसी फर्म को, किसी कंपनी को, किसी इंडिविजुअल को फ्री छोड़ दो, ठीक है, कि आपके ऊपर अब जो हमने पहले इम्पोजिशन लगा रखे थे वो नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि वो और अच्छे से जो है फ्लरिश कर पाएगा और अच्छे से काम कर पाएगा। तो ऐसे ही होता है लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट्स। अब आप देखेंगे कि जब आपने मार्केट को लिबरलाइज कर दिया कि आप यहाँ पर कम रूल्स को फॉलो करते हुए भी अपने बिजनेस में ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में आपने देखा कि आप देखो कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज आपस में एंगेज हो रही हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज जो है इस सेक्टर में ओपन होना चाह रही हैं, ठीक है। तो इससे बाहर वाली कंपनीज भी हमारे इधर अट्रैक्ट हो रही हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया जो हमारी पॉलिसीज थी उसमें, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारा इंटरनेशनल बिजनेस प्रमोट हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हो रहा है। Next one is advances in technology and accelerating information flows. अब अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस कर लो, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि आपको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि यू कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उस केस में उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम ग्लोबलाइजेशन को क्या और अच्छे से कर पाएंगे, ग्लोबलाइज और अच्छे से हो पाएंगे, बिल्कुल हो पाएंगे, ठीक है। तो जब हमारे पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो हम ग्लोबलाइजेशन को अपनी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मोबिलिटी ऑफ पीपल। अब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हम देख रहे हैं कि इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज मोबिलिटी ऑफ पीपल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। आप देखोगे कि लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत ज्यादा जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन भी प्रमोट हो रही है। हो सकता है कोई पर्सन यहाँ पे किसी चीज का बिजनेस करता हो, से फॉर एग्जाम्पल स्कूटर्स का बिजनेस करता हो और वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो वहां पर भी वो अपना स्कूटर्स का बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो व्हेन देयर इज मोबिलिटी ऑफ पीपल, द पीपल आर willing to travel from one country to another, so globalization is also increasing. Next one is mobility of products. अब प्रोडक्ट्स भी अगर मूव कर रहे हैं वन कंट्री टू अदर कंट्री, तो उस केस में भी जो है हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज डिक्लाइन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर आपको किसी चीज को जो है खरीदना हो, ठीक है, और उसको मंगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़े, ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा पे करनी पड़े, तो आपको एक टाइम पे लगेगा कि आई शुड नॉट बाय दिस प्रोडक्ट, राइट। तो उस केस में आप उसको बाय करने से थोड़ा सा हिचकिचाओगे। तो आप देखेंगे कि आजकल लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग कॉस्ट को काफी ज्यादा कम कर दिया है, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कुड प्लेस ऑर्डर्स, कुड ऑर्डर देयर प्रोडक्ट, ठीक है। और इससे क्या है, आपस में ग्लोबलाइजेशन बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज्ड इंटरडिपेंडेंसी। अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि इंडिया का अगर हम एग्जांपल दें तो इंडिया में सबसे ज्यादा स्पाइसेस जो है ग्रो किए जाते हैं। स्पाइसेस आप समझते हैं, मसाले, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रो किए जाते हैं। तो बाकी कंट्रीज में जब स्पाइसेस को सप्लाई करने की बात आती है तो दे डिपेंड ऑन इंडिया, ठीक है। तो अगर वो लोग हम पे डिपेंडेंट हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और ये जो है ग्लोबलाइजेशन को ड्राइव करता है, मतलब कि प्रमोट करता है हमारी कंट्री में, ओके। तो आई होप ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर क्लियर टू यू। ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन किस किस वजह से ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो हमने देखा किस किस वजह से बढ़ रही है। सबसे पहले लिबरलाइज कर दिया हमने कैपिटल मार्केट्स को। सेकंड, टेक्नोलॉजी को हमने एडवांस कर दिया, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजी को डेली बेसिस पे। नेक्स्ट, मोबिलिटी ऑफ पीपल जो है आसान हो गया, एक पर्सन दूसरी कंट्री में बहुत इजीली जा सकता है, अपना बिजनेस खोल सकता है।
मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत आसान हो गया, एक प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर सकता है बहुत आसानी से। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है कंपनीज कम कर रही हैं, शिपिंग कॉस्ट कम की जा रही हैं। इंटरडिपेंडेंसीज बढ़ गई हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे हो सकता है रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स के लिए डिपेंडेंट हो, ठीक है। और ग्लोबल कंसोलिडेशन इसमें है कि आप मिलके कोई चीज को रन करना जो है ज्यादा अच्छा समझते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअली किसी चीज को रन करने से, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हो रही है, ओके। तो ये मतलब होता है ड्राइवर्स का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक फॉर द इवनिंग, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन, ठीक है बेटा। इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है? Internationalization is defined as the process by which firms become engaged and more involved in international markets. अब इसको अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो इंटरनेशनलाइजेशन होता है बेटा जब आपका जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है, वो मूव करना चाहती है इंटरनेशनली, ठीक है। उसको क्या करना है? इंटरनेशनली मूव करना है, लेकिन वो डायरेक्टली किसी चीज पे जो है मूव नहीं करती है, इट गोज स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आपकी कंपनी को अपनी प्रेजेंस दिखानी है इंटरनेशनली, ठीक है। तो उसके लिए वो एक प्रोसेस फॉलो करती है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन, ओके। Internationalization is defined as the process by which firms become engaged or more involved in international markets, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है बेटा, देखते हैं एक बार। ये देखिए, प्रोसेस या फिर स्टेजेस कह सकते हैं, स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। तो आपकी जो फर्म है, ठीक है, वो डोमेस्टिक फर्म है सबसे पहले। अब उसको इंटरनेशनल जाना है, यानी कि उसको अपनी प्रेजेंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में दिखानी है, ठीक है। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम गोइंग एज अ इंटरनेशनल कंपनी, देन बिल्डिंग इटसेल्फ एज अ मल्टीनेशनल कंपनी, उसके बाद ग्लोबल कंपनी, और लास्ट में ट्रांजैक्शनल कंपनी। जस्ट 1 सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू हैव टू शो द प्रेजेंस ऑफ योर कंपनी, ठीक है, इंटरनेशनली। तो उसके लिए हम कुछ स्टेजेस को फॉलो करते हैं, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेज 1, जिसका नाम है डोमेस्टिक कंपनी। अब कोई भी कंपनी अगर अपनी होम कंट्री में ऑपरेट कर रही है तो आपको पता है कि उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? अगर वो अपनी होम कंट्री में ऑपरेट कर रही है कोई कंपनी, तो उसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक कंट्री या कंपनी या फॉरेन कंपनी, क्या कहते हैं उसको हम? यस। तो उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक कंपनी, ओके। सो आप देखेंगे कि इंटरनेशनलाइजेशन में क्या किया जा रहा है, ये डोमेस्टिक कंपनी अब फॉरेन कंपनी बनने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले ये क्या करती है, अपने आप को एक इंटरनेशनल कंपनी बनाती है। अब इंटरनेशनल कंपनी क्या होता है बेटा? जैसे कि हमने डोमेस्टिक कंपनी समझा, वैसे ही इंटरनेशनल कंपनी होता है। इंटरनेशनल कंपनी होता है जब आप अपनी बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाकर जो है बिजनेस को करते हैं, ओके। बेटा एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड इसको चेक कर लूं। इंटरनेशनलाइजेशन था ना हमारे उसमें फर्स्ट यूनिट में?
हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इंटरनेशनलाइजेशन हमारे फर्स्ट यूनिट में ही है। ओके, so internationalization is defined as a process by which firms become engaged and more involved in international markets. ठीक है, आप डोमेस्टिक कंपनी थे और अब आपको बाहर की मार्केट में जो है ज्यादा इन्वॉल्व्ड बनना है, अपने आप को बाहर की मार्केट में सेटअप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप थे एक डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी कौन होती है? जो अपनी बाउंड्रीज के मतलब अंदर ही ऑपरेट करती है। उसके बाद आप बनते हैं इंटरनेशनल कंपनी। इंटरनेशनल कंपनी आप जब बनेंगे तो आपका मेन फोकस क्या है कि बाहर जो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बाहर आपके पास जो भी फॉरेन कंट्रीज में आपको दिख रही है कोई अपॉर्चुनिटी, उसको आप जो है ग्रैब करना चाहेंगे। ठीक है, दे एक्सटेंड द डोमेस्टिक बिजनेस एंड प्रैक्टिसेस टू फॉरेन मार्केट। अब आप यहाँ पर जो भी बिजनेस कर रहे थे, हो सकता है उसी बिजनेस को आप बाहर जाके ओपन करें, या फिर उस बिजनेस को आप बाहर जाकर उसको ऑपरेट करें उसमें। ठीक है, सो दैट इज गोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी टू अ इंटरनेशनल कंपनी। ओके, तो हमारा सेकेंड स्टेज जो है दैट इज नोन एज इंटरनेशनल कंपनी। ओके, या फिर हाँ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। इसके बाद आता है हमारा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब हमने बड़ी बड़ी कंपनीज देखी है जिनको हम एमएनसी कहते हैं। एमएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या मल्टीनेशनल कंपनीज। सो अंडर दिस स्टेज आपको जो आपका फर्म है, अब वो बड़े लेवल पे जो है बन चुका है। ठीक है, उसको मल्टीनेशनल क्यों कहा जा रहा है? हो सकता है उसने अपनी ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सेटअप कर ली हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? डोमेस्टिक से, राइट? डोमेस्टिक से हम आए इंटरनेशनल कंपनी पे। इंटरनेशनल कंपनी में हमने क्या किया? अपने आप को सेटअप किया। ठीक है, या फिर डोमेस्टिक वाला जो बिजनेस है वही हम यहाँ पर भी रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा अभी इनिशियल स्टेज था यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हमारा मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी में हमें क्या देखने को मिलता है कि हमने अपनी कंपनीज को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में सेटअप कर दिया है, और मल्टीनेशनल कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी से बड़ी कंपनी होती है। ओके, यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस जो है ओपन हो चुकी हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, राइट? अब यहाँ पर क्या है आपके लिए बेनिफिट? यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आपका मेन हेडक्वार्टर जो है वो एक ही रहता है। आपके सारे डिसीजंस इस हेडक्वार्टर में लिए जाते हैं, बट आप ऑपरेट करते हो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। ओके, सो मल्टीनेशनल कंपनी का एक जो है हेडक्वार्टर होता है जहां से सारे मेन डिसीजंस जो है लिए जाते हैं और इन बाकी सारी कंपनीज को कन्वे किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? डोमेस्टिक कंपनी। सेकेंड इज इंटरनेशनल कंपनी, जहां पे हमने अपने थोड़े बहुत ऑपरेशंस किए स्टार्ट दूसरी कंट्री में जाकर। थर्ड, हम थर्ड स्टेज पे आ गए विच इज मल्टीनेशनल कंपनी, जहां पर हमने अपनी बहुत सारी जो है सब्सिडरीज कंपनी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में खोली। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि मेन जो डिसीजन थी, जो मेन डिसीजन मेकिंग थी, वो कहाँ पर की जा रही थी? वो आपकी हेडक्वार्टर में की जा रही थी, विच वॉज द जो आपका मेन जो मेन बिजनेस की बिल्डिंग है, वहां पर आपके सारे डिसीजंस जो है लिए जा रहे थे। हाँ, आपका काम हर एक ब्रांच में, हर एक सब्सिडरी में चल रहा था, हर एक ऑफिस में चल रहा था, बट मेन डिसीजन मेकिंग जो है सिर्फ एक ऑफिस में की जा रही थी। सो दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी। इसके बाद आते हैं हम ग्लोबल कंपनी पे। नाउ ग्लोबल कंपनी में क्या होता है? ग्लोबल एंटरप्राइज में आप स्टैंडर्डाइज मतलब एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जैसे कि जो भी आपका डिसीजन मेकिंग या फिर आपका काम करने का तरीका जो भी किया जाएगा, वो सारी की सारी कॉर्पोरेशंस में, सारी की सारी कंपनीज में सेम होगा, चाहे वो किसी भी कंट्री में काम करती हो। ठीक है, तो ग्लोबल कंपनी में क्या होता है कि आपकी जो भी आप प्रोसीजर काम करने का फॉलो करते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस, ऑल द सब्सिडरीज। ठीक है, सो दैट इज अ ग्लोबल कंपनी, जो आती है मल्टीनेशनल कंपनी के बाद। ठीक है, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज ट्रांजैक्शनल फर्म्स। अब ट्रांजैक्शनल फर्म्स में क्या होता है बेटा? ट्रांजैक्शनल फर्म्स में डिसीजंस जो है ले सकता है एक
जो ऑफिस है उस जैसे मेन ऑफिस के अलावा दूसरे ऑफिस वाले भी डिसीजन ले सकते हैं। जैसे हमारी फॉर एग्जांपल एक जो ऑफिस है दैट इज इन इंडिया, जो मेन ऑफिस है, और दूसरा ऑफिस जो है हमने खोला श्रीलंका में या फिर हमने खोला यूके में। ठीक है, यूके में हमने दूसरा ऑफिस खोला। अब हमने डिसीजन मेकिंग की पावर यूके वाले ऑफिस को भी दे दी। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में क्या था, सिर्फ एक हेड ऑफिस में ही सारे के सारे डिसीजंस लिए जा रहे थे। ठीक है, बट जब आप बात करेंगे ट्रांजैक्शनल कंपनी की, तो ट्रांजैक्शनल कंपनी में हर एक ऑफिस के अकॉर्डिंग, हर एक कंट्री में जो भी ऑफिस खुला है वो अपने डिसीजंस को उस हिसाब से जो है ले सकता है। ठीक है, सो देयर इज हाई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, अंडर ट्रांजैक्शनल कंपनी। तो यहाँ पर सिर्फ एक जगह सारे डिसीजंस नहीं लिए जा रहे हैं, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की पावर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ऑफिसेस खुले हुए हैं अलग अलग कंट्रीज में, उनको दे दी जाती है। ठीक है, सो दैट इज the way it is different from a multinational corporation. Okay, so these were the stages of internationalization. एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। It started from being a domestic company, then international company, उसके बाद multinational company, उसके बाद global company, and last में transnational company. Okay, तो internationalization का concept भी पढ़कर जाएंगे पेपर में। इसकी स्टेजेस को याद रखेंगे कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। और इंटरनेशनलाइजेशन क्यों करती हैं कंपनीज, इसको देख लेते हैं। ड्राइवर्स और रीजंस फॉर इंटरनेशनलाइजेशन, क्यों कंपनीज अपने बिजनेस को इंटरनेशनली लेकर जाना चाहती हैं, वहां की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहती हैं। तो सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन। हो सकता है कि वो किसी नए बिजनेस में, नए प्रोडक्ट में एंगेज होना चाह रही हूँ, उसको बनाना जो है उसमें एंगेज होना चाह रही हूँ। ठीक है, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाह रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है अपने प्रोडक्ट लाइन में इंक्लूड करना चाहती हूँ, या फिर बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी को सीखना चाह रही हूँ। ठीक है, सो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हो सकता है कि वो इंटरनेशनली ऑपरेट करने की सोच रहे हो। सेकेंड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है बेटा कि आपको कोई चीज जो है दूसरी कंट्री में सस्ती पड़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सस्ती पड़ रही है, तो अगर ऐसा होता है तो आप जो है कोशिश करते हो कि उस कंट्री में जाकर मैं अपने बिजनेस को ऑपरेट करूं। नेक्स्ट वन इज इंसेंटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स होती हैं जो आप अगर वहां पर उस कंट्री में बिजनेस अपना ओपन करते हो तो आपको जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती हैं, आपको बहुत सारा जो है सब्सिडरीज दे सॉरी सब्सिडीज देती हैं। ठीक है, तो उस केस में आप ट्राई करते हो कि उन सब्सिडीज का फायदा मैं उठाऊं और दूसरी कंट्री में जो है अपना बिजनेस ऑपरेट करूं, ओपन करूं। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्केट ग्रोथ। हो सकता है दूसरी कंट्री में आपको ज्यादा अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हो तो आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेके जाना चाहें। जॉइंट वेंचर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं। तो दीज वर सम ऑफ द रीजंस कि हमारी कंपनीज, कुछ कंपनीज इंटरनेशनलाइजेशन क्यों करती हैं, इंटरनेशनलाइजेशन को फॉलो क्यों करती हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर बेटा। If you have any doubts, you can just write in the chat box. फर्स्ट यूनिट में आपको याद रखना है कि आपको ग्लोबलाइजेशन पढ़कर जाना है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बिजनेस पढ़ना है। ओके, आपको जो है इंटरनेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़कर जाना है कि होता क्या है, स्टेजेस क्या होती है इसकी। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट आई होप आपको समझ आया होगा, थोड़ा आइडिया लगा होगा कि क्या इंटरनेशनल बिजनेस होता है और क्या क्या जो है बहुत ही बेसिक चीज जो है इंटरनेशनल बिजनेस को बनाती है। ओके, तो वो हमारी आज की क्लास का मोटिव था। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। बेटा पीडीएफ तो उसी स्टडी मटेरियल से बनी है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं।
ओके बेटा सुन भी रहे थे, कोई डाउट्स नहीं है आपको? ओके देन ओके सो we'll meet tomorrow now. Great. ग्रेट सो वील मीट टुमारो नाउ एंड कल हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 ओके तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ज्वाइन द क्लास और कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूनिट 2 तो आज मैंने आपको यूनिट 1 को जो है शॉर्ट में थोड़ा सा समझा दिया और आई होप आपको समझ आया होगा कल भी हम थोड़ा यही कोशिश करेंगे कि अपने यूनिट 2 को अच्छे से रिवाइज कर पाए और कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है नोट कर पाए और जिससे आपको एग्जामिनेशन में हेल्प हो पाए ओके सो ओके ओके स्टूडेंट्स टेक केयर वील मीट टुमारो गुड नाइट एवरीवन